Good morning. Welcome back to Buyback. So, what was the homework in last lecture? I suppose home assignment question number 7 and home assignment question number 8, right? Check the answer. Home assignment question number 7. In situation number 1, that is debt of rupees 3200 crore, maximum number of shares that can be bought back is 24. Okay. And in case of a 6000 crore debt, you cannot buy back shares because the minimum amount is nil. So you cannot buy back the shares. Okay. If you go for entries, equity share, buyback to bank, equity share capital premium, premium is adjusted through security premium and balance is adjusted through free reserve. And finally for 240 we have created a CRR. Okay, so that is very simple one. Is that clear? Okay, next question number 8. In question number 8, according to test 1, 37,500, 46,875 and 34,500. So lowest is 34,500 and we would like to go for buyback of what? 30,000. So that is within the limit. Yes, you can go ahead with the buyback. Yes. And entries are equity share capital, security premium adjusted to security to equity share buyback to bank, and revenue reserve created for the purpose of CRR. Revenue reserve used for the purpose of CRR. Is this clear? Okay. Now, shall we go ahead with Chalo, open classwork में हमने टोटल 8 सम्स कर लिए थे. यस. डू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जांपल नंबर 9 है वो कैंसिल कर दो आप. ओके. मैं क्यों कैंसिल करवा रहा हूं समझिए. पहले तो ये बायबैक, ये नवंबर 10 का क्वेश्चन है और उसमें जो बायबैक की अमाउंट दी है वो ज्यादा है क्योंकि वो बायबैक की लिमिट से पहले थे और उसमें एक और प्रीमियम की भी मिस्टेक है. सो ये पूरा ना सम है, इग्नोर करो. ऐसा ही एक सम एग्जांपल नंबर 10 है और वो मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूं 9 क्योंकि हमें सारे के सारे एडजस्टमेंट है वो एग्जांपल 10 में आ जाते हैं. सो डू नॉट वरी. एग्जांपल 10 पे आ जाओ. चलो एग्जांपल नंबर 10. सी यू कैन चेक दैट ऑल्सो. एग्जाम्पल नंबर 9 के सारे एडजस्टमेंट यहां पे 10 में आ जाते. रादर 10 में ज्यादा एडजस्टमेंट भी है. ओके. चलो यहां पे बैलेंस शीट इज गिवन ओवर हियर. ऑथोराइज्ड कैपिटल 5,000, इक्विटी शेयर 3,000, प्रेफरेंस शेयर्स 2,000. Reserves and surplus are given 10, 4,500 and security premium. Fixed cost less provision for every non-current investment and current assets including cash and bank. Company passed. Now see, company ने already resolution pass कर दिया है 20% of equity share buyback करने के लिए at ₹15. So यहाँ पे क्या है समझो. कम बैक. तो यहां पे क्या है, बायबैक का जो 20% है, ओके, वो ऑलरेडी उन्होंने बायबैक कर लिया है. तो यहां पे हमें क्या दिया है कि आपको एंट्री पास करके बायबैक करके बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ठीक है. आपको वो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 कंपेयर नहीं करना है क्योंकि वो कंपेयर करके हमने ऑलरेडी
शेयर्स बॉट बैक कर लिए हैं, ठीक है, तो इसमें टेस्ट नहीं आएंगे। अभी ये तो क्लियर हो गया कि कब हम टेस्ट 1 2 3 कैलकुलेट करेंगे और कब हम डायरेक्टली ही एंट्री पास करेंगे। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, इज इट ओके? फॉर दिस पर्पस it sold investment for rupees 30 lakhs of rupees 25 lakh. The company redeemed its preference shares at a premium of 10% as on the 1st April 2012. अभी यहां पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ओके। इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग 3 लाख, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग 3 लाख, फेस वैल्यू 3.3. These debentures were cancelled on 1st April 2012. यहां पे एक स्मॉल एग्जांपल दिया है, एडजस्टमेंट दिया है ऑन डिबेंचर कैंसलेशन। सर डिबेंचर तो ग्रुप 1 में आता है, हाँ, बट ये क्या है, नवंबर 12 का क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस, और ओल्ड सिलेबस में डिबेंचर रिडम्पशन ग्रुप 2 में ही आता था, इसीलिए उन्होंने डिबेंचर, ईसॉप, बायबैक, प्रेफरेंस रिडम्पशन सब कुछ वो कलेक्टिवली पूछते थे। बट यहाँ पे न्यू सिलेबस में चांसेस विल बी वेरी मच लेसर, बट स्टिल व्हाई चांसेस आर देयर lesser, but why even 1% chances are there? Because you have already studied debenture redemption in group 1, obviously. So in group 2, if they ask a single adjustment or simple adjustment of, you can say, debenture redemption, that is okay. You require to pass journal entries and prepare the balance sheet. So first of all, we need to pass the journal entry, yes, but before that we need to do a working, yes. So let us do the working for it, yes. Now see over here, now if we talk about a buyback, okay, सो हमें कितने शेयर्स बायबैक करने हैं देख लीजिए यहां पे। अभी ये एक एडजस्टमेंट खास यहां पे क्या लिखा है, इश्यूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 9% ऑफ 100 ईच, 2,000 रुपीज इन 1000, ओके। सो वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो बायबैक के लिए ही हमने इश्यू किए थे, तो माइंड दैट थिंग, ओके। यहां पे हमें इक्विटी शेयर बॉट बैक करना है। सी कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 3 लाख ऑफ 10 ईच, 30 लाख रुपीज इन 1000 है, तो हम रुपीज इन 1000 ही रखेंगे जर्नल एंट्रीज में, बैलेंस शीट में, सारी जगह पे, ठीक है। तो वो आप भूलना मत, रुपीज इन 1000 कन्वर्ट करना भूलना मत, ओके। सो wherever there is rupees, we will convert that into rupees in 1000. So now out of this total rupees in 1000, 300 equity shares, we have to consider 300 equity shares into 20%. So total 60 equity shares will be there, is it? At rupees 15. So total rupees 900. See यहां पे मैं सारे के सारे रुपीज इन 1000 कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ डिवाइड दिस into face value of equity share bought back 600 and premium on buyback 300, is it? रुपीज इन 1000 है, रुपीज इन 1000 कन्वर्ट करते हैं हम, ओके। यहां पे देखिए हमने फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, सॉरी प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, हाँ किए थे, कितने किए थे, चलिए बताइए कितने किए थे, ओके 2000, मतलब ज्यादा कर लिए थे। तो टेल मी वन थिंग, हमें यहां पे बैलेंस अमाउंट सीआरआर क्रिएट करनी है, नेगेटिव में तो क्रिएट नहीं करेंगे। सो ओवर हियर no need to create CRR. This is very important point.
नो नीड टू क्रिएट सीआरआर। यहां पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि इश्यू 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। हमने बायबैक के लिए ही प्रेफरेंस इश्यू किए थे। अभी आप बोलोगे सर यहां पे तो वो रिडीम कर देते हैं, वो हमें देखना नहीं, ठीक है, वो रिडीम करे या ना करे। अभी हम जब बायबैक करें इसके लिए हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए कि नहीं किए? यस किए, तो फिर सीआरआर क्रिएट नहीं। और फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक व्हाट वी विल यूज? प्रीमियम। डू वी हैव इनफ सिक्योरिटी प्रीमियम? यस, we'll use the security premium over here. So is this clear to you? Okay, now if we talk about redemption of preference shares, redemption of preference share, तो हमें सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम से। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2000। तो यहां पे ₹2000 प्लस 10% प्रीमियम, टोटल आएंगे 2200 रुपीज इन अगेन 1000। नाउ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड ₹2000 एंड प्रीमियम ऑन बायबैक, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था क्या कि ये जो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन है, हमने ग्रुप 1 में भी किया था, ये जो प्रेफरेंस रिडम्पशन है, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में जब हम सिक्योरिटी, जब प्रीमियम से इश्यू रिडीम करेंगे तो उसका प्रीमियम में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करना है। तो अभी इसका मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आपको कि क्या करना है। सो जस्ट वी आर सपोज टू राइट 1 नॉट। कब आप यूज कर सकते हो, कब आप यूज नहीं कर सकते हो, क्लियर कट आपको बताना, ठीक है। बिफोर दैट अभी चेक कीजिए, ये प्रेफरेंस से रिडीम करने के लिए हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू नो, तो फिर सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? टेल मी। पूरा का पूरा 2000। ओके, सो ये सीआरआर हम रेवेन्यू रिजर्व में से क्रिएट करेंगे। वी हैव इनफ रेवेन्यू रिजर्व 4000। यस, अभी एक आप नोट लिख दीजिए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल नोट रिगार्डिंग यूज ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये स्पेसिफिकली सिक्योरिटी, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जो बायबैक के लिए, तो हम सिक्योरिटी बायबैक जब हम प्रीमियम से करते हैं, तो बायबैक के लिए जब हम प्रीमियम यूज करेंगे तो वहां पे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर ही सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहां पे फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी 2 तरह की होती है। ओके, एक जो सेक्शन 133, अभी ये सेक्शन 133 क्या है? ग्रुप 1 लॉ में आपने देखा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई, सेक्शन 133 गिव्स पावर टू सीजी टू नोटिफाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड वहां पे इंस्टीट्यूट की हेल्प लेके इंड एस एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। तो अगर जो भी कंपनी गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 है, मतलब जो भी कंपनी में इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, वहां पे आप फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिर्फ प्री और रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू दैट इज जनरल और पीएनएल ही यूज कर सकते हो। मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते। व्हेन you are a company which is governed by section 133, that is called Indian accounting standard, or that is
प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 नॉट एप्लीकेबल। ऐसी कंपनी कि जिसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब रेगुलर कंपनीज जिसमें हम एस एप्लीकेबल करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, तो वहां पे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी यूज्ड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यस यू कैन यूज दिस। तो यहां पे हमें यह देखना है कि ये जो कंपनी है वो गवर्न बाय 133 है या नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको एजम्पशन करना है, बाकी ये सारे का सारा चैप्टर है वो बायबैक का है, उसमें रिडम्पशन का एक पॉइंट आता है, उसमें जो प्रेफरेंस रिडम्पशन का चैप्टर ग्रुप 1 में आता है वो डिफरेंट है, उसमें ये डिटेल में आता है, ठीक है। बट यहां पे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है तो आपको एजम्पशन ये लिखना पड़ेगा कि assuming that this company is not governed by the provision of section 133, ओके, तो आप यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकोगे जब आप ऐसा एजम्पशन लिखोगे कि assuming that this company is not governed by provision of 133, सिंपल, ओके, इज दैट क्लियर। बाकी ये मैंने सारा जो प्रोविजन समझाया आपको, ये सिर्फ इसीलिए समझाया कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अगेंस्ट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूज कर सकते हैं या नहीं। इफ यू आर अ कंपनी, इंड एस एप्लीकेबल, 133 एप्लीकेबल, नो यू कैन नॉट यूज, बिकॉज वो जो स्टैंडर्ड है उसमें रिस्ट्रिक्शन अलग तरह के हैं, ये जो स्टैंडर्ड है उसमें रिस्ट्रिक्शन अलग तरह के, ठीक है, इसीलिए। तो ये क्लियर है, वेरी मच क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, पासिंग द जर्नल एंट्रीज। यहां पे एक जर्नल एंट्री हमें ये भी पास करना है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹3 लाख, फेस वैल्यू 3.3, तो ओन डिबेंचर को कैंसिल करना है, तो वो हमने ग्रुप 1 डिबेंचर में देखा था, चलो वो भी यहां पे सीख लेते हैं एंट्री पास करने के दौरान। चलिए, तो ये नोट्स ऐसे ही रखते हैं हम, ओके, एंट्रीज पे आते हैं। चलिए, ये नोट ऐसे ही रखते हैं हम, एंट्रीज पे आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे बायबैक की एंट्री है, इन्वेस्टमेंट सेल किया है, प्रीमियम प्रेफरेंस रिडम्पशन एंड देन ओन डिबेंचर कैंसिलेशन, ठीक है। चलिए, तो ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। चलिए फटाफट फटाफट। तो भी डेट नहीं है, 1 2 3 4 ही लिखना है हमें। सबसे पहले क्या किया, चलिए पहले हम इन्वेस्टमेंट ही सेल कर देते हैं। 25 लाख के जो इन्वेस्टमेंट थे, अभी यहां पे 25 लाख दिया है हमें, रुपीज इन 1000, सब जगह हम रुपीज इन 1000 ही रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। अभी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये रुपीज इन 1000 होते हैं तो वर्किंग में फिर रुपीज इन लैक्स कर देते हैं, मतलब पूरा फिगर लेते हैं, और फिर वो एडजस्टमेंट एंट्री में रुपीज इन 1000 फॉर बैलेंस शीट में अलग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे हमें वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, 25 लाख सोल्ड फॉर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सो वी हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट 30 लाख के हैं, सोल्ड किए हमने 25 लाख में, तो 25 लाख 2500 और ये 1000, तो 2500 इन्वेस्टमेंट थे फॉर 30 लाख, सो 3000, यस, ओके। तो हमें लॉस, पीएनएल अकाउंट, लॉस गया 500 का, यस, ओके।
लॉस ऑफ ₹500। चलिए, नरेशन में मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम बायबैक करेंगे। बायबैक, तो बायबैक के लिए अभी जो मैंने इससे पहले भी बताया था कि CRR हम कंबाइन कर सकते हो, पेमेंट ऑफ बैंक कंबाइन कर सकते हो, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कंबाइन कर सकते हो, और आपको सेपरेट रखना है तो सेपरेट रखिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो पहले बायबैक के लिए हम एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और आप यहां पे प्रीमियम ऑन बायबैक लिख के फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रूट थ्रू कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, so that you very well know, right? Next, CRR, अभी CRR क्रिएट करना है या नहीं? नहीं, यहाँ पे नहीं करना है क्रिएट, और सिक्योरिटी प्रीमियम ने यूज कर लिया है, तो अभी क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर लिया तो डायरेक्टली बैंक से पेमेंट कर देते हैं। यस, इक्विटी शेयर बायबैक, टू बैंक, ओके, इज दैट क्लियर? Is that clear? Now next, see, we are supposed to prepare the balance sheet as well. तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इनफ्लो आउटफ्लो करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, बिकॉज बैलेंस शीट यू आर सपोज टू प्रिपेयर। यस, ओके। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो यहाँ पे हम पूरे के पूरे प्रेफरेंस रिडीम कर देंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% preference share capital account debit, okay, 9% preference share capital account debit 2000, premium on redemption of preference share, okay, debit 200, to preference share holder, यहां पे हम लिखेंगे preference share holder account, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इट विल बी, हाँ, अभी ये जो मैंने आपको लिखा है 133, ये काम आएगा। अब यहां पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, वी कैन एज्यूम द अदर वे ऑल्सो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं ये जो कंपनी है दैट इज नॉट कवर्ड बाय, यहां पे एस्ट्रिक मार्क लिखता हूं, और यहां पे मैं एजम्पशन लिख देता हूं, ओके। क्या एजम्पशन है, कंपनी इज नॉट गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनीज, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसीलिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के जो प्रीमियम है उसमें यूज कर सकता हूं। यस, ओके, तो ये मैंने एजम्पशन लिख दिया। अगर आप अदर वे एज्यूम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, यहां पे आएगा जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बैलेंस शीट टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा एडजस्टमेंट वो रिजर्व में होगा, ठीक है। और रिजर्व का जो आउटर टोटल है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट नंबर 2 बैलेंस शीट बनाएंगे आप, नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस का जो टोटल है वही रहेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, जस्ट फर्क क्या पड़ेगा, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम के जगह पे हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व, ओके, और पीएनएल अकाउंट, फ्री रिजर्व इन शॉर्ट। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सो दैट इज 200। अभी यहां पे तो हमें CRR क्रिएट करना ही है। यस यस यस, तो CRR के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव रेवेन्यू रिजर्व इनफ। यस, तो विल यूज रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट
2000 to capital redemption reserve. Is that clear? एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, हाँ बैंक से पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ओके, चलिए नेक्स्ट करें हम. अभी 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 ये ध्यान रखना, ठीक है. ये कौन सा वाला एडजस्टमेंट करेंगे हम? डिबेंचर, ऑन डिबेंचर. हाँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मुझे ये एडजस्टमेंट में पूछते हैं. अगर आपने ग्रुप 1 में ठीक से किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कॉस्टिंग 3 लाख फेस वैल्यू. अभी जो डिबेंचर में एक ऑप्शन है बायबैक, हम शेयर में ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमारे ही शेयर में इन्वेस्ट करें. नो, दैट इज नॉट परमिटेड, दैट इज नॉट अलाउड. बट डिबेंचर में आप ऐसा कर सकते हो. आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, दैट इज योर लायबिलिटी. आप अपने ही ओन डिबेंचर में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं. अभी हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में देखा था ग्रुप 1 में कि रिडम्पशन के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है. लाइक यू कैन रीपे एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, यू कैन पे वाया क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट्स, राइट. Or there is another way of conversion of debenture at the end of the stipulated period into the equity share. तो conversion. और एक और तरीका है जिसमें हम कर सकते हैं कि डिबेंचर को ओपन मार्केट में हम ओन डिबेंचर परचेज करें और हमारे ही ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को, हमारे भी लायबिलिटी जो है डिबेंचर, उसको आमने सामने कैंसिल कर दे. तो जब भी हमें कैंसिल करना है तो इतना याद रखना, डिबेंचर है वो हमारी लायबिलिटी है. अगर उसको कैंसिल करना है तो उसकी नॉर्मल बैलेंस होगी क्रेडिट, उसको डेबिट करेंगे. इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर है वो हमारी एसेट है, नॉर्मल बैलेंस होगी डेबिट, उसको हम क्रेडिट करेंगे. और ये दोनों का जो डिफरेंस है हम वो कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करेंगे. मतलब प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लॉस है ओके तो आप पीएनएल में लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होनी तो चाहिए ना डेबिट करने के लिए. कैपिटल रिजर्व ही ना हो, ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन एडजस्ट इन पीएनएल. तो अभी यहां क्या करना है, हमें ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से क्रेडिट होगा और डिबेंचर फेस वैल्यू से डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से क्रेडिट होगा. ओके, क्योंकि डिबेंचर जो लायबिलिटी है वो हम फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कॉस्ट से रिकॉर्ड करेंगे. तो यहां पे देखिए कॉस्ट है 3 लाख, फेस वैल्यू 330. तो अभी हम क्या करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट एट फेस वैल्यू 3 लाख. 3 लाख मीन्स 300 रुपीज इन 1000 ओके. टू हियर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, सॉरी फेस वैल्यू 330 है. फेस वैल्यू 330, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर 300. इट मींस 30 का हमें बेनिफिट हुआ. 30 बेनिफिट कैसे हुआ समझा, हमने 330 फेस वैल्यू के डिबेंचर ओपन मार्केट में 300 में परचेज किए और आमने सामने कैंसिल कर दिए. ठीक है, तो क्या होगा, 30 का हमें गेन होगा 30,000 का. तो वो गेन कहां ट्रांसफर होगा, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो ये डिबेंचर की कैंसलेशन की एंट्री समझ में आई सबको. फेस वैल्यू से डिबेंचर डेबिट होगी, कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमें कैंसिल करना है आमने सामने. ठीक है, और जो भी प्रॉफिट है वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस एडजस्टमेंट. यहां पे हमें रिजर्व्स का भी वर्किंग बनाना पड़ेगा, तो वो आप बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे बोनस नहीं करना है. ठीक है, नो इश्यूज, यू कैन प्रिपेयर वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. You need to prepare the bank account, that is also you can prepare while preparing the balance sheet.
बट यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है और वो जो वर्किंग है वो नोट डाउन कर लीजिए और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर बैलेंस शीट आप होमवर्क में कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पर बैलेंस शीट दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, चलो अभी नोट डाउन दिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग्स डू लेट मी नो। चलिए अभी फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। मैं आपको बैलेंस शीट भी शो करूंगा, डोंट वरी, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो हमने अर्लियर लेक्चर्स में कर लिए, बट फिर भी देख ले। Note down the entries. Hello sir. Yes. So हमने यूज ऑफ सिक्योरिटी Sorry, use of security premium. वो जो आपने चार्ट बनवाया ना, हाँ वो रखो ना। हाँ, वो रखूंगा। चलिए ये एंट्रीज करता, या फिर वो बाकी है, ठीक है वो कर लो। Okay, now note down the journal entries.
ओके ठीक है, नाउ सी, ये assumption भी लिख लो आप। Now see how you are supposed to draw the balance sheet। आप बैलेंस शीट होमवर्क में ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो उसका जो टोटल है बैलेंस शीट का, ठीक है। सो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट विल बी 7850। नोट नंबर 1 कैसे प्रेजेंट होगा, ऑथराइज तो 5000 है ही, यहां पे हमने इक्विटी शेयर 2400, रिजर्व सरप्लस में हमने जैसे भी कैपिटल रिजर्व एडजस्ट किया, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन यस, सीक्रेट प्रीमियम पूरा एडजस्ट हो गया, रेवेन्यू रिजर्व ट्रांसफर किया, सीआरआर क्रिएट किया और पीएनएल में लॉस आया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम जो डिबेंचर्स है वो हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे, यस, इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड हो गया है, बैंक बैलेंस में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे एक नोट लिखिए कि हमें ये एजम्पशन करना है कि वैसे तो एजम्पशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये नोट में ये लिखा है कि वो जो हमने प्रेफरेंशियल इश्यू किए थे फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, वही यूज करके हमें बायबैक किया है, इसीलिए हमने सीआरआर क्रिएट नहीं किया है बायबैक के लिए, ओके। बट अगर आप एज्यूम ऐसा करते हो नहीं वो प्रेफरेंशियल यूज नहीं किए बट वो जो हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए वो यूज किए, तो आप सीआरआर क्रिएट कर सकते हो, उसका अल्टरनेटिव आंसर आएगा, बट वो छोड़िए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ये बैलेंस शीट टोटल नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही आपको नोट प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। और ये जो 133 का है वो सजेस्टेड आंसर में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर नवंबर 12 का है, उसके बाद वो कंपनीज एक्ट आया, उसके बाद वो सेक्शन 133, इसीलिए ये आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, सो 12 इज वेरी मच क्लियर टू क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी मच क्लियर, ओके। शैल वी गो अहेड नाउ, ओके, शैल वी गो अहेड नाउ, चलो। एग्जाम्पल 11, अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार पूछ रहे हैं, न्यू सिलेबस में आता है, ओल्ड में तो ये नहीं आता था। राइट्स, वोटिंग राइट्स, ओके। ये वोटिंग राइट क्या है, अभी क्या होता है कि हमें कंपनी में हमने इक्विटी शेयर्स भी इश्यू किए और प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू किए। अभी वोटिंग के लिए तो हमने वो लॉ में पूरा चैप्टर नंबर 7 देखा था कि कितने टाइप के वोटिंग होते हैं, कैसे वोट होते हैं, कौन कौन शेयर होल्डर्स कौन सी मीटिंग में वोट कर सकते हैं, तो वो हमें थियरी अभी नहीं करनी है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो जो कोई कॉमन मीटिंग हुई, देखिए, जिसमें इक्विटी शेयर्स को भी वोट करना अलाउड है और प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोट करना अलाउड है, और दोनों ने वोट किया, तो वोट का जो प्रोपोर्शन है, वोटिंग राइट्स है, वो हम इन प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी यहां पे WXYZ होल्ड इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ, अभी यहां पे हमें ये जो W X Y and Z, they are holding, you can say 40%, 30%, 10 or 20, or you can consider that way also कि टोटल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि कभी इसका जो टोटल 100 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, टोटल तो अभी 100 ही हो रहा है, 40/100, 30/100, 10/100 और 20/100, ये प्रपोर्शन में ये चारों शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ओके।
और अभी हमारे पास A, B, C, D भी है और वो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उसका रेशियो है 30, 40, 20, 10। 30, 40, 20, 10। अभी ये इनका प्रपोर्शन है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहां पे है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, समझना खास, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग इट इन 4 और 5 मार्क्स। यस, वेरी इजी। और ये अभी मैं बताता हूं कितनी बार रिसेंटली पूछा। ओके, पहले नहीं पूछते थे, May 18 में न्यू सिलेबस है तब से नहीं पूछते थे, अभी रिसेंट में 2-3 बार पूछ लिया। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर है 40 लाख, हमें पेड अप कैपिटल देखना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख। अभी ये दोनों का रेशियो क्या आएगा, देखिए हमारी टोटल शेयर कैपिटल है 60 लाख, हमारी टोटल शेयर कैपिटल है 60 लाख। आउट ऑफ दैट 40 लाख इक्विटी शेयर्स, 20 लाख प्रेफरेंस। तो इन दोनों का रेशियो क्या आया, 2:1। तो अभी क्या आएगा, ये जो इक्विटी शेयर्स है उसमें जो भी शेयर होल्डर्स है वो हम 2 के प्रोपोर्शन से डिवाइड होंगे, 2 के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई होंगे, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो 1 के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई होंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम ये सारा प्रोपोर्शन निकालते हैं कैसे, देखिए 2/3 40/100। ओके, ये अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 40/100 तो कितना आएगा, चलिए 1010 कैंसल, 2 5, तो कैन आई से 4/15, कैन आई से 4/15, ये 1010 कैंसल, 2 5 कैंसल, 3/15, लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। ये पे आएगा, यहां पे आएगा 1/15, यहां पे आएगा अगेन 2/15, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए अगेन 1/10, यहां पे 1/10। बट अभी हमें ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में लिखने हैं, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आप पॉइंट में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे देखिए कितना आएगा, इट विल बी 2/15 अगेन, यहां पे 1/15 अगेन, और यहां पे 1/30। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द प्रोपोर्शन। बस यहां पे फाइंड देयर वोटिंग राइट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सर ये वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी है, अभी ये हमने मीटिंग में देखा था। देखिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कब वोट कर सकते हैं, 1 वाइंडिंग अप हो तब, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर की प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट ज्यादा कम करना, बढ़ाना, रिडक्शन करना हो, और जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग करना हो तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिसीजन देगी, या फिर वाइंडिंग अप में। तो यहां पे वाइंडिंग अप के लिए है, ओके, तो फिर प्रेफरेंस शेयर को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी यहां पे पूछते हैं, चलो ऑडिटर का है, ऑडिटर अपॉइंट करने की मीटिंग है, तो फिर हमें सिर्फ इक्विटी शेयर ही काउंट करना है, उसमें प्रेफरेंस शेयर वोट नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहां पे जनरली वो वाइंडिंग अप ही पूछेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, क्योंकि यहां पे हमें रेजोल्यूशन याद रखने कितने कितने रेजोल्यूशन आते हैं, नो। ओके, और ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कई बार पूछा है, देख लीजिए, देख लीजिए, ये है न्यू सिलेबस नवंबर 20 वाइंडिंग अप के लिए। अभी यहां पे इक्विटी शेयर 75, प्रेफरेंस शेयर 25, तो 3:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। न्यू सिलेबस नवंबर 20, न्यू सिलेबस जनवरी 21 है कॉमन रेजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप।
अभी अभी देखिए देखिए, हाँ बस न्यू सिलेबस जुलाई 21, जुलाई 21. Explain the meaning of equity shares with differential rights. Can a preference share also be used with differential rights? और यहां पे अगेन वो क्वेश्चन पूछा गया. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सारे के सारे जो राइट्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब वोटिंग राइट्स वाले क्वेश्चंस, वो अभी होमवर्क में हो सकते हैं. यस, 19, 15 and 14, very easy. Okay, is that clear? Okay, चलिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, चलिए नोट डाउन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 11, वोटिंग राइट. ओके, शैल वी गो इट नाउ? 12 तो हमने पहले ही कर लिया था क्वेश्चन. यस, बाकी है. यस. ओके ओके, नोट डाउन कीजिए. ओके, 12 तो हो गया. ओके, एक 13 में एक क्वेश्चन पेपर में भी मिस्टेक थी. स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चन पेपर में ऐसी मिस्टेक आए तो आप क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस नवंबर 20 का क्वेश्चन देख सकते हैं. यहाँ पे 460 था. एक्चुअली ये दोनों को मिला के 460 होता था, क्योंकि बैलेंस शीट की टोटलिटी नहीं हो रही थी. बराबर, यहाँ पे 410 आएगा, तो वो एक आप चेंज कर दीजिए. रेवेन्यू रिजर्व 410 आएगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व सरप्लस आर गिवन. Redeemed preference share at 4% premium, bought back 2.5 equity shares of ₹10 each at 40. Payment for the above made. तो यहाँ पे वो सिंपल सम्स है, बट यहाँ पे हम अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे ना, नहीं करेंगे. अभी जो ये नवंबर 20 का सजेस्टेड आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूं. ये होमवर्क में ही है, ये होमवर्क में ही है. बट यहाँ पे उन्होंने जो मैंने 133 का जो एजम्पशन किया है वो किया है. यस, आपको सजेस्टेड आंसर में मिल जाएगा, बट ये आप होमवर्क में करके आएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 क्लियर है, वेरी इजी. अभी आप देखना, ये जो रिसेंट सम्स है, हमें ऐसा लगेगा ये तो क्या, हमने तो इससे भी क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस कर ली. ये तो सारे
इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही होगा। अगर आपने इतने सारे सम्स की प्रैक्टिस कर ली है तो अभी ये जो रिसेंट सम है वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। देखिए नवंबर न्यू सिलेबस नवंबर 20 है, वेरी इजी। अभी ये न्यू सिलेबस जनवरी 21 इजी। अभी ये देखिए न्यू सिलेबस जनवरी 21। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल 16, द डायरेक्टर ऑफ उमंग पास रेजोल्यूशन टू बाय बैक 5 lakh equity shares of its fully paid up equity shares of rupees 10 each at 15. This buyback is in compliance with the provision of Companies Act 2013. For this purpose, sold its investment of rupees 3425. Issued 20,000 12% preference share of 100 par entire amount being payable in application. तो यहां पे हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं। ओके, used 15 lakh premium apart from its adequate balance in general reserve to fulfill its legal requirement regarding buyback. Okay, the company has necessary cash balance for payment. You require to pass journal entries regarding buyback of shares. Okay, चलो buyback करना है हमें, तो रेजोल्यूशन पास किया है, बैलेंस शीट नहीं दी, बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है और वो भी इंक्लूडिंग नरेशन। ओके, चलिए अभी इसका हम चार्ट बनाएंगे, आप ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स देता हूं, ट्राई कीजिए। यस, ये 5 लाख नंबर के रुपीस दिए। 5 लाख नंबर, ओके हो गया। ओके, चलिए देखिए आंसर। चेक द आंसर। बैंक अकाउंट 25 लाख, पीएनएल अकाउंट 5 लाख, लॉस, इन्वेस्टमेंट 30,
नए प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किए बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। अभी हमने बायबैक किए 50 लाख शेयर्स, आउट ऑफ दैट प्रेफरेंस इश्यू 20 लाख। सो हमें सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? बैलेंस 30 लाख। ओके, देन आफ्टर ड्यू एंट्री, पेमेंट एंट्री, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया। अभी ये देखना, इन्होंने क्या बोला था कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, बट कितना? 15 लाख। तो 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, बाकी जो यूज किया वो हमने यूज किया जनरल रिजर्व। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल पास द एंट्री फॉर बायबैक। क्लियर है? इजी, न्यू सिलेबस जनवरी 21, इजी वन। यस सर, इसमें तो जनरल अमाउंट दिखी नहीं है, तो हमें अज्यूम करना है कि इतना ही हमें इनफ है हमारे पास। इनफ होगा तो ही करेंगे ना ये लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पे स्पेसिफाई किया, देखिए, यूज्ड रुपीज 15 लाख ऑफ इट्स प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व टू फुलफिल। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है बायबैक के लिए वो हम जनरल रिजर्व में से करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट है, इनफ है। ओके, यहीं पे दिया है। या तो फिर आपको बैलेंस शीट देंगे जिसमें एक एक रिजर्व दी गई होगी, या फिर ऐसे बता देंगे कि जनरल रिजर्व इनफ है, आप यूज करो, बिंदास यूज करो। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो हमने जनवरी का जो प्रपोर्शन है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको प्रपोर्शन दिया है, इक्विटी 60, प्रेफरेंस 30, 2:2, 2/3। तो ऐसे ही हमें वेट करना है, और वोटिंग पावर हम परसेंटेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल। तो ये इन्होंने 5 मार्क्स में ये पूछ लिया था लास्ट क्वेश्चन में, जनवरी 21। सो वेरी मच क्लियर। ओके, विल वी गो एट देन 16। हाँ, अभी 17 देखिए, 17 ओल्ड सिलेबस जनवरी 21, summarize balance sheet of SM Limited as on 31st March 20, 6 lakh equity shares, 60,000 equity shares of 10 each. We have premium, general reserve and P&L, debenture, and all other assets are given. Now, shareholder adopted resolution for buyback of 25% paid up capital at 15%. Issue 10% debenture, 68 premium of 10% to finance the buyback. अभी यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, हमने डिबेंचर तो इश्यू करने हैं, हमें उसका प्रीमियम भी कंसीडर करना है, बट यहां पे इक्विटी के सामने अगर आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो सीआरआर तो पूरा क्रिएट करना ही पड़ेगा। यस, मेंटेन 20,000 इन जनरल रिजर्व, सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,04,80, बायबैक के जो एक्सपेंस है वो 2,000 है। ठीक है, You required to pass journal entry record about transaction and prepare ledger of bank account। अभी हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ओके, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है हमें, सिर्फ क्योंकि ये 8 मार्क्स में ही पूछा था, तो एंट्रीज और बैंक अकाउंट इनफ है। चलिए ये देखते हैं, ओल्ड सिलेबस जनवरी 21। ओके, prepare that chart. Okay, then after we are going to pass the entry for the purpose of buy. That will be very simple. अभी यहाँ पे for the purpose of you can say buyback, हमें CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम सिंपल चार्ट बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है ये सब में, बट फिर भी बना देते हैं। बायबैक हमने 25%, यहाँ पे 25% कीजिए, 60,000 का 25%, कितने शेयर्स हुए बायबैक के लिए, कितने शेयर्स हुए बायबैक के लिए? इज इट 15,000 एट ₹15 ईच, जिसमें से फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक क्या आएगा? 150, और उसका जो प्रीमियम आएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक, वो कितना आएगा?
75। अभी यहां पे क्या है, आउट ऑफ दिस 150 आर यू यूजिंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? नो, यू आर इश्यूइंग द डिबेंचर। सो यहां पे कुछ नहीं आएगा, तो पूरे की पूरी अमाउंट वी नीड टू क्रिएट CRR फॉर फुल अमाउंट, वी नीड टू क्रिएट CRR फॉर फुल अमाउंट। ओके, और यहां पे हम यूज क्या करेंगे? हाँ, सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और यहां पे देखना, ये हमने जनरल रिजर्व को 20 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और सिक्योरिटी में हमारे पास इनफ है, तो वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं, इनफ नहीं है, 70 यहां से यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से 70, और बाकी के 5000 हम जनरल रिजर्व यूज करेंगे। ठीक है, बाकी के हम 5000 जनरल रिजर्व में यूज करेंगे। ओके, या फिर वी कैन यूज PNL ऑल्सो, कोई इश्यू नहीं है, PNL भी इश्यू कर सकते हैं, जनरल रिजर्व भी इश्यू कर सकते हैं। ये जो 2000 का एक्सपेंस है बायबैक, उसका क्या करेंगे? ये चलो एंट्रीज में देख लेते हैं हम उसका क्या करेंगे। ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। चलिए, ड्रॉ दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। और यहां पे हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है। हाँ, खुला है, नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट एज वेल। चलिए, बैंक बैलेंस हमारे पास कितनी है? 83,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 83। ओके, चलिए अभी 1 बाय 1 एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम बायबैक, चलिए बायबैक कर लेते हैं पूरा बायबैक। सो फर्स्ट इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150। प्रीमियम में, हाँ हम प्रीमियम में लिखते हैं, फिर प्रीमियम यूज करेंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 75। यहां पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट डायरेक्ट में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा, PNL लिखना पड़ेगा, तो फिर नो इश्यूज, वी कैन यूज प्रीमियम ऑन बायबैक, दैट वाली एंट्री। इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट 225। अभी सोर्सिंग ऑफ प्रीमियम में क्या करेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया, यस, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया 70,000। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज इट कंप्लीटली ओवर हियर। ओके, अभी एक और तरीका है यहां पे, you can use the security premium 75 even. How? Because anyway यहां पे जो देखिए, ये सारी की सारी एंट्री एक ही दिन में करनी है, ठीक है, तो यहां पे हमें डिबेंचर से प्रीमियम आएगा, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर की एंट्री पास कर सकते हो पहले, यस। तो चलिए डिबेंचर की एंट्री पास कर देते। इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट 66 टू डिबेंचर कितने परसेंटेज के डिबेंचर है? 10%। फेस वैल्यू 10% डिबेंचर 60, और वो जो प्रीमियम है वो हम यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, यस। तो यहां पे क्या हुआ? अभी यहां पे क्या हुआ देख लीजिए,
कि हमारा पास जो भी रिजर्व्स थे, यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट कर देते हैं रिजर्व्स। अब हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बैलेंस शीट में हमने जो भी रिजर्व दिए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम 70, जनरल रिजर्व 63 और पीएनएल 140। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारे पास ओपनिंग है वो है 70, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। ओके, अभी हमारे पास जो भी जनरल रिजर्व है वो है 63 और पीएनएल अकाउंट दैट इज 140। अभी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें जनरल हमने 20 मेंटेन करने ही है, ऐसा बोला है 20,000 तो हमें मेंटेन करने ही है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम में 6,000 प्लस हो गए। क्यों प्लस हो गए? क्योंकि यहाँ पे आया ना सिक्योरिटी प्रीमियम डिबेंचर के इश्यू करने के लिए। हाँ, अभी हम बैंक से रिसीव करेंगे टू 10% डिबेंचर 60 and premium on debenture that is to security premium account। तो इतना 66 का बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, कैन वी यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम? ओके ठीक है, वो हम लास्ट में यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और सीआरआर क्रिएट करना है वो भी हम कर सकते हैं, यस। बट एक डाउट है, क्या ये जो बायबैक एक्सपेंस नया आया उसका क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले हमें ये जो बायबैक एक्सपेंस है वो ऐसा कुछ तो दिया नहीं था, तो ये बायबैक एक्सपेंस का क्या करें वो भी देख लीजिए। बायबैक एक्सपेंस हम बैंक से पेमेंट करेंगे और वो बायबैक एक्सपेंस हम पीएनएल में डेबिट कर देंगे, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, राइट नाउ वी कैन पास रिमेनिंग एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सॉरी प्रीमियम ऑन बायबैक 75। क्लियर? नाउ क्रिएटिंग सीआरआर, अभी हमने ये प्रीमियम यूज कर दिया 75, अभी हमें सीआरआर क्रिएट करना है। तो सीआरआर के लिए हमने क्या बताया कि ये बैलेंस मिनिमम 20 तो आनी ही चाहिए, तो हम रिजर्व में से सिर्फ 43 यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अभी सीआरआर कितनी क्रिएट करनी है, सीआरआर कितना क्रिएट करना है हमें, 150। उसमें से मैंने जनरल रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व कितना यूज किया, 43। मुझे सीआरआर क्रिएट करना है 150। चलो बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बैलेंस हम पीएनएल में यूज करेंगे कितना, 1,07,000। तो ये जो 1,07,000 है वो हम पीएनएल में से यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने पहले ही बैलेंस लिख दिया कि भाई 20,000 तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए तो हमने एंट्री कर दी बायबैक की। अभी बायबैक का जो पेमेंट बाकी है ये मेंटेन करना है, वो भी हमने कर लिया। एडजस्टमेंट 1 पास करना है, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, अभी बैंक में से मुझे पेमेंट करने हैं कितना है, 225, बट डू आई हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल विथ मी? नो, नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे इन्वेस्टमेंट हमें सेल करना है ना। हाँ, तो वर्थ रुपीज 1,04,000, सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,04,80। तो हमने 1 लाख के जो इन्वेस्टमेंट थे वो हमने 80,000 में सेल कर दिए। ठीक है, चलिए तो फिर बैंक में 80,000, पीएनएल अकाउंट लॉस 20 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, तो अभी पीएनएल में आ जाएगा 20,000 नेगेटिव, यस, और बैंक में आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 80। अभी देखिए हमारे पास बैंक बैलेंस आ गए, इनफ नहीं होगी तो देख लेते हैं। बैलेंस इनफ हो गई, देखिए टोटल कर लीजिए बैलेंस कितनी हो गई। ओके,
चलिए, तो हम पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर बायबैक को, कितना, पूरा 225, ठीक है। नाउ वी कैन पे इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अभी देखिए, बायबैक की जो 4 एंट्री होती है वो गई प्रीमियम, ये ड्यू की एंट्री, यस, यूजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, सीआरआर एंड पेमेंट। For that very reason we issued debenture, for that very reason we sold investments, okay, we did that, yes. now अभी एक बाकी है बायबैक एक्सपेंस, ठीक है। बायबैक के लिए हमने एक्सपेंस किए तो वो होगा बायबैक एक्सपेंस डेबिट 2000 टू बैंक 2000। तो बैंक में से हमने वो पेमेंट कर दिया बायबैक एक्सपेंस का, है ना बैंक बैलेंस, बायबैक एक्सपेंस 2000। और ये जो 2000 एक्सपेंस है वो हम कहां पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इन P&L account debit to buy back expense adjusted in P&L, ओके। तो हमने ये जो P&L है उसमें 2000 एडजस्ट कर लिए और हमने जो CRR है वो क्रिएट कर लिया। कितना क्रिएट किया है CRR? 150, ठीक है। चलिए, तो अभी बैलेंस बता दीजिए सारी की सारी जो रिजर्व्स है उसकी। बट रिजर्व की बैलेंस की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो फिर भी आप रिजर्व का कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां पे बैंक बैलेंस दे दीजिए मुझे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस? टू थाउजेंड, ओके। ये भी आप बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। और यहाँ पे हमें एंट्रीज और बैंक अकाउंट इतना ही पूछा था। अगर बैलेंस शीट पूछते तो हम रिजर्व भी कैलकुलेट करते, बैलेंस शीट भी कैलकुलेट करते, सारे की सारी कैलकुलेशन आती। तो इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अभी नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज January 21 ओल्ड सिलेबस।
ओके चलो क्लियर। हाँ अभी एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया है, वो 19 तो हो जाएगा होमवर्क में, ठीक है। होम असाइनमेंट हमने सारा का सारा कर दिया। अभी चलिए ये दो सिचुएशन फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताइए, क्योंकि जुलाई का क्वेश्चन है, सजेस्टेड आंसर अभी नहीं आए हैं, बट आई वेरी वेल नो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इजी वन, दो सिचुएशन वाला क्वेश्चन। आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इन 15 मार्क्स। इन नो वे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिजर्व 15 मार्क्स। और यहाँ पे तो बैलेंस शीट ही भी नहीं बनानी है। सी यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट जर्नल एंट्रीज इन सिचुएशन पॉसिबल। तो अभी ये दो में से एक तो पॉसिबल नहीं होगा और दूसरा पॉसिबल होगा, राइट। देखते हैं चलिए दोनों में पॉसिबल हो या नहीं हो रहा है। कैन यू काउंट दिस? चलो सॉल्व दिस। Statute reserve will not be considered for the purpose of three reserves. Okay, three reserve में हम तीन ही कंसिडर करेंगे। तीनों की तीनों टेस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। यस चलो हो गया कैलकुलेशन। चलिए टेस्ट वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट वन और टेस्ट टू में। टेस्ट वन और टेस्ट टू में क्या आंसर आ रहा है? टेस्ट वन 41750। 41750। ये कैसे कैलकुलेट किया है 41750? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, उसके जो 25% है उतना, मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व कितना आएगा? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व आएगा 50 लाख 10,000
उसका 25% इज इट, और डिवाइडेड बाय 30 तो आएगा 41750 करेक्ट। अभी जो 3 लाख शेयर्स हैं उसका 25%, 75,000। टेस्ट 3 में क्या आएगा? टेस्ट 3 में सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में 94 और सिचुएशन 2 में नील, तो लोवेस्ट आएगा 41750। वेरी इजी, nowhere it is deserving 15 marks. It's hardly deserving 8 marks. Yes, or maximum 10. Is that clear? Okay. So that is example number 18. 19 homework में है. So that's it for the purpose of buyback. चलिए, okay, clear? Now buyback में कोई doubt है, you can ask me.